Sir joins. Okay. I'm proceeding with the lectures now. As I'm told, that is, we have to start with the Taylor's and Lawrence series. What is the Taylor's and Lawrence series? So first of all, what is the Taylor's and Lawrence series? So you should remember that Taylor's and Lawrence series. Always remember one thing: z plus 1 raised to minus 1 raised to minus 1, which is equal to whenever we have to doing such a kind of a function or such a kind of work, z plus 1 raised to minus 1, we have to write this kind of thing, like, or always remember this formula: z or 1 minus z plus z square plus or minus z cube plus z raised to 4, so on. This time kind of a series will go go ahead. So always remember that 1 minus z plus z square minus z cube plus z raised to 4, alternate way. Now whenever the series becomes, इसको 1 plus z बोलो या फिर 1 minus z बोलो, बात एक ही है. Oh sorry, 1 plus z or z plus 1, because it is a plus, so there will be a no effect. But whenever the series will be becomes like this: 1 minus z raised to minus 1 will be there. We have to write 1 plus z plus z square plus z cube plus z raised to 4 up to so on. So this kind of a series you should remember for the expansion of this kind of functions. You should remember for solving of a Taylor's and Lawrence series. Means the formalization will be what: 1 plus z and 1 minus z raised to minus 1 as it is. 1 plus z is if there, then you have to solve like of a 1 minus z raised 1 minus z plus z square minus z cube plus z raised to 4, alternate plus minus. But when the series is 1 minus z, this see this part changes for question to question. यहाँ पे हम z से सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे जब सॉल्व करो तो 2 बाई जेड रहे या z बाई 3 रहे या 3 बाई जेड रहे, तो उधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. द सीरीज यू शुड रिमेंबर एज 1 minus z and 1 plus z only. So basically this is not a series, or basically this is not a Taylor's and Lawrence series. What is exactly Taylor's and Lawrence series? I'm just explaining. For any function with in our this module, the numerator upon denominator is given. Numerator upon denominator is given. हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर से पॉइंट्स फाइंड आउट करने आए हैं. यहाँ पे भी उसी तरह आप पॉइंट्स फाइंड आउट करना है आपको. यहाँ पे हमेशा 3 केसेस डिजाइन होंगे. जैसे अगर आपको z का वैल्यू फॉर एग्जांपल ऐसा मिलता है, सपोज इफ यू आर गेटिंग z इक्वल टू, एक मिलता है 1, एक मिलता है 2 या 3 ले लेता हूँ, तो यू हैव टू डिजाइन 3 केसेस. पॉइंट्स हमेशा आपको 2 मिलेगा. आपका सिलेबस जो डिजाइन है उस बेसिस पे आपको 2 ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. सो द फर्स्ट केस इज mod of z
इज लेस देन वन, कि जो z है वो आपका लेस देन वन से है। अगर कोई भी चीज यहाँ पे जैसे पॉइंट हमारे पास 1 और 3 था, अगर वो 1 से छोटी है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मॉड ऑफ z आपका 3 से भी छोटा ही होगा, क्योंकि कोई 1 और 3 में 3 तो बड़ा ही नंबर है एंड 1 इज स्मॉल। सो अगर वो 1 से स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा है तो बाय डिफॉल्ट इट इज clearly mentioned that is less than 3. So this is known as a first case. Then we have to define as a case number 2. So mod of z is greater than 1, but mod of z is less than 3. So it is a greater than 1 and less than 3. And last case, that is a case number 3, mod of z is greater than 3. Therefore अगर कोई वैल्यू बड़े नंबर से बड़ा है तो बाय डिफॉल्ट वो स्मॉलेस्ट से ग्रेटर होगा. So mod of z is greater than 1. So these three cases we have to define in each questions. तो यहाँ पे जैसे 0.13 का हो सकता है 0.24 है, हो सकता है पॉइंट आपका 1 5 रहे, 2 3 रहे, 3 5 रहे, कोई भी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं. बट वॉट एवर द पॉइंट्स यू विल गेट यू हैव टू कंसिडर एज अ पॉजिटिव टर्म्स, बिकॉज दिस इज अ मॉड्यूलस. अगर z इक्वल टू -1 और -3 मिलता है, लेकिन आप जब लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखोगे कि लेस देन 1 लेस देन 3, यू हैव टू टेक एज कंसिडर एज अ पॉजिटिव. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आइडिया आपको आएगा. सो दिस थ्री केसेस, this the first case is known as a Taylor series. The first case is known as a Taylor series, and all three cases is known as a Laurent series. All three cases are known as a Laurent series. So एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, if f of z is equal to this, find Taylor's and Laurent series of their respective function. तो कंफ्यूजन होता है टेलर सीरीज क्या है, लॉरेंट सीरीज क्या है. ये केसेस आपको डिजाइन करना है, फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है. तो डायरेक्ट मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से आइडियाज आएंगे कि किस तरह टैकल करना है. ये हो जाएगा, उसके बाद मैं 2 3 न्यूमेरिकल जो प्रीवियस हमारा पार्ट है उसका और लूंगा मैं, बिकॉज 2 3 न्यूमेरिकल्स उसके और सॉल्व करना बाकी रह गया था, मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर दिया. बट विल लेट आई हैव टू फिनिश दिस पार्ट. उसके 2 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स आपको हैं या चैप्टर है इस मॉड्यूल का, दैट इज नोन एज अ रेसिड्यू, उससे जॉइन है, मतलब रेसिड्यू के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आप साथ में कर पाओगे. तो पहले हम टेलर्स लॉरेंट को देख लेते हैं. बहुत इजी टॉपिक है. 8 मार्क्स ऐसा रहता है कि अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता था या फिजिकली एग्जाम होता था तो ये 8 मार्क्स किसी स्टूडेंट्स का नहीं जाता था. हर एक 8 मार्क्स ये इजीली ले लेता था. नाउ मूविंग अहेड विद दिस क्वेश्चन पार्ट, सॉल्व कैसे करते हैं वो आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना, बिकॉज सॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू पॉइंट, इसमें जो फर्स्ट केसेस है या फर्स्ट केस जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, दैट केस इज नोन एज अ इनसाइड द रीजन. इनसाइड द रीजन. सेकेंड को केस जो दिखाया है आपको, बिटवीन द रीजन्स और बिटवीन द 2 पॉइंट्स. मतलब क्या है, z से 1 से बड़ा था और 3 से छोटा था. थर्ड केस जो आपको दिखाया है, दैट इज नोन एज आउटसाइड द रीजन और आउटसाइड द सर्कल और आउटसाइड द पॉइंट. So all three cases you should remember, that is basically known as a region of convergence. इसको हम लोग कहते हैं region of convergence के नाम से जानते हैं. Now coming to first problem for today's, or Taylor's of Lorentz series. What is first problem is expand
expand f of z is equal to 1 upon z into z plus 1 z minus 2 z minus 2 with with unit circle about the origin. About the origin. Now this is our question is given. So we have to solve. सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है पार्शियल फ्रैक्शन आपको अप्लाई करना है. So the solution will be f of z is equal to 1 upon z into z plus 1 z minus 2, which is equal to, we have to apply the partial fractions. So a upon z plus b upon z plus 1 plus c upon z minus 2. So first we have to calculate a, b and c. Simplify कर देते हैं इस part को. So this is equal to 1 upon z into z plus 1 z minus 2 is equal to a into z plus 1 into z minus 2 plus b into z minus 2 into z plus c into z plus 1 into z and divided by, as it is, z into z plus 1 z minus 2. So this is our partial fractions. Now we can cancel this part. This part is cancelled with this part. या directly आप ये step कर सकते थे अगर करना है तो. So 1 is equal to a into z plus 1 into z minus 2 plus b into z into z minus 2 plus c into z into z plus 1. Now we have to find a, b and c. So while finding a, b and c, first we have to put a equal to 0 अगर लाना है हमको, या b 0 लाना है, या c 0 लाना है. मतलब अगर a फाइंड आउट करना है तो b और c को आपको 0 करना होगा. अगर आपको b फाइंड आउट करना है तो a और c 0 करना होगा. अगर c फाइंड आउट करना है तो a और b आपको 0 करना होगा. तो if I'm putting z equal to 0, putting z equal to 0, so this two parts by default 0, because 0 into anything will become 0, 0 into anything will become 0, and I can get the value of a easily. So while putting z equal to 0, 0, 0, so 1 into minus 2, it will becomes minus 2a. So therefore you will getting minus 2a is equal to 1. Therefore a is equal to minus 1 by 2. Next, if I'm going to put z equal to minus 1, z इक्वल टू मैं जैसे ही -1 यहाँ पे पुट कर दूंगा,
minus 1 plus 1 will become 0, 0 into anything 0, minus 1 plus 1 will be 0, 0 into anything will becomes 0. So 1 is equal to ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0, यहाँ पे आपने रखा है -1, सो -1 ये हो जाएगा -1 एंड -2 -3 इंटू -1 +3, so you can write as a 3 into b, therefore b is equal to 1 by 3. Last we have to calculate c, so you can see that is z minus 2, z minus 2. If I am putting z equal to 2, then by default 2 minus 2 0, ये दोनों पार्ट आपके 0 हो जाएंगे, therefore 1 is equal to 2, substituting here, so 2 as it is, 2 plus 1 3, so 3 2s are 6, so 6c, therefore c is equal to 1 by 6. अब आप अच्छी तरह से देखो, f of z equal to ये था and this equal to this था, तो therefore I am going to write f of z equal to a is equal to -1 by 2, so I am writing -1 by 2 into z. b इक्वल टू हमारे को क्या मिला है 1 by 3, तो +1 by 3 into z plus 1, एंड c आपको मिला है 1 by 6, so +1 by 6 into z minus 2. So this is our function we got after solving partial fraction. अब यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है, यहाँ से आपके वर्क स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले सेपरेट कर दिया आपने, सेपरेट करना आपका काम है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, या एक्चुअल डिवीजन मेथड आपको करना होगा और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस करना होगा. सो मूविंग अहेड विद दिस नेक्स्ट पार्ट, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो z प्लस 1 है, ये तो z दिया है खाली, तो इससे कुछ मतलब नहीं है, ये पार्ट तो सिर्फ आपका साथ में वर्क करने वाला है, रहने वाला है. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो z इक्वल z प्लस 1 दिया है और z माइनस 2 दिया है. तो इंस्टेड ऑफ साइन, साइन आप ना देखते हुए एक चीज हमेशा याद रखो, आप यहाँ पे केसेस सीधा डिफाइन करोगे. सो द फर्स्ट केस यू हैव टू डिजाइन इज, फर्स्ट केस z प्लस 1 z माइनस 2, सिर्फ ये दोनों चीज को आपको देखना है, जीरो पे देखना ही नहीं आपको, बिकॉज दिस z इज ओनली गिवन मींस इट इज z इक्वल टू 0. यहाँ पे देखोगे तो z इक्वल टू -1, z इक्वल टू 2, बट इश्यू क्या है कि हम माइनस प्लस नहीं देखेंगे, हम सिर्फ नंबर्स को यहाँ पे देखेंगे जो z के साथ हैं, ये मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स को नहीं देखेंगे, ये जो भी है, बिकॉज ये हमने पास सेपरेट करने की वजह से हमको ये नंबर्स मिले हैं. तो z प्लस 1 z माइनस 2, तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो आप बनाओगे, mod of z is greater than mod of z is less than 1 and mod of z is less than 2. So this is our first case. Similarly second case जो आप बनाओगे यहाँ पे, केस नंबर 2, तो यहाँ पे होगा mod of z is greater than 1 and mod of z is less than 2. थर्ड केस जो आप बनाओगे वो सिमिलर वे से यहाँ पे क्या रहेगा, केस नंबर 3, mod of z is greater than 2 and mod of z is greater than 1. फर्स्ट का पूरा अपोजिट थर्ड रहता है, सेकंड में बिटवीन होता है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब z जो है वो बिटवीन में है. नाउ मूविंग अहेड विद द प्रॉब्लम, अब वन बाय वन केस अपने को सॉल्व करना है. जो फर्स्ट केस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो पहले तो मैं फंक्शन लिखता हूँ या फिर केस में लिखता हूँ, mod of z is less than 1 and mod of z is less than 2. So f of z is equal to -1 by 2z plus 1 by 3 into z plus 1 plus 1 by 6
इंटू z-2। मतलब अच्छी तरह से ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे हमने वर्क क्या किया है। यहाँ पे अगर अच्छी तरह से आप देखोगे तो यू कैन सी दैट z इज लेस देन 1 एंड z इज लेस देन 2। मतलब इसमें बड़ा कौन हुआ, 1 एंड 2, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन z एंड 2 इज ग्रेटर देन z। सो वी हैव टू टेक कॉमन। 1 कॉमन निकालने से तो कोई फर्क नहीं होता। याद रखो हमेशा अच्छी तरह से, जो भी नंबर ग्रेटर होगा या जो भी वैल्यू ग्रेटर होगा बिटवीन z एंड दी नंबर्स के बीच में, उसको आप आउट करोगे कॉमन, उसको आप बाहर निकालोगे। तो जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा अगर, तो f ऑफ z फर्स्ट वाले टर्म से तो कुछ मतलब नहीं है, -1/2z। सेकेंड वाले में से देखोगे तो 1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z, तो 1 बाहर निकालूंगा इस ब्रैकेट से, तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। दैट मीन्स 1/3, खाली इसको आगे लिख दूंगा 1 प्लस z। लेकिन यहाँ पे आऊंगा तो 2 इज ग्रेटर देन z, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 क्या है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ से आप इस ब्रैकेट से -2 आप बाहर निकालोगे, तो -2 जैसे बाहर निकालोगे, -1 बाय, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 12, बिकॉज 6 2 12, और ये आपका हो जाएगा z/2 माइनस, सॉरी, -z/2 +1। मैंने -2 बाहर निकाला है। अगर -2 से आप फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते हो, इसको 6 करते हो, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे ऐसा इस पार्ट को ऐसा लिख दो सेपरेटली, 6 इंटू -2। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। -2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो -2 इंटू जेड क्या हो जाएगा, 2z, 2 कैंसिल तो z हो जाएगा। -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये चीज़ हमने वर्क किया है यहाँ पे। therefore f of z is equal to -1/2z +1/3 1 plus z -1/12। ये आपका हो जाएगा, आगे पीछे करूंगा मैं, 1 को पहले लिखूंगा तो 1 माइनस z/2। हमको ये पार्ट मिल गया। अब हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले लेते हैं। इसको ऊपर न्यूमरेटर में जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू -1/2z एज इट इज +1/3, ऊपर लेंगे इस पार्ट को तो हो जाएगा 1 प्लस z रेस टू -1। इसको भी ऊपर लोगे तो -1/12, 1 माइनस z/2 रेस टू पावर -1। या ऐसा पार्ट हमको मिल जाता है। अब इसको हम, इस सीरीज को हम एक्सपांशन कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे इसी को से। तो f ऑफ z इक्वल टू -1/2z +1/3, एक्सपांशन दे देते हैं तो क्या होएगा, 1 माइनस z प्लस z² माइनस सो ऑन। 3 टर्म लिख दिए, बस हो गया इनफ। या z³ तक जाना है तो जा सकते हो आप। -1/12, इस सीरीज का भी एक्सपांशन देंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस कंटिन्यू जाएगा, 1 प्लस z/2 प्लस z²/2² प्लस z³/3², ओ सॉरी 2³ प्लस सो ऑन। ये ऐसा सीरीज एक्सपांशन होगा। तो ये आपने फर्स्ट सीरीज फाइंड आउट कर ली यहाँ से। सो दिस इज f ऑफ z। सिमिलरली सेकेंड केस पे आऊंगा अब मैं।
what will be my second case? So second case we have to write first of all. So 1 is less than mod of z is less than 2. ये ऐसा केस था कि 1 छोटा है z से लेकिन 2 बड़ा है z से। तो सबसे पहले फंक्शन आपको लिखना है f of z is equal to minus 1 by 2z plus 1 by 3 into z plus 1 या 1 plus z लिखो plus 1 by 6 z minus 2। फिर से पार्ट हम देखेंगे अच्छी तरह से तो एक चीज क्लियर होगा कि z क्या है 1 से बड़ा है। तो z और 1 में से हम z कॉमन निकालेंगे, जो बड़ा रहेगा वो कॉमन निकलेगा। और 2 और z में कौन बड़ा है 2। तो फिर से यहाँ से 2 निकलेगा लेकिन -2 है तो -2 आपको बाहर निकालना है जैसे ऊपर हमने किया है। तो f of z इक्वल टू -1/2z प्लस 1/3 इंटू z। कॉमन निकाल दिया तो जहाँ पे z है वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/z। फिर से z से मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू 1 z हो जाएगा और z इंटू 1 z कैंसिल, फिर से आपको z प्लस 1 मिलेगा। -1 बाय, तो अभी ऊपर किया है वही चीज़ हमको करना है यहाँ पे 1/12 1 माइनस z/2। यही वर्क जो ऊपर हमने किया है वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। -2 बाहर निकाला है। क्यों -2 निकाला है? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन z है तो यहाँ से आपको 2 ही कॉमन निकालना है। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है -2 है तो -2। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे +2 रहता तो +2 आप बाहर निकालते। जो भी साइन रहेगा उस साइन के साथ वो टर्म कॉमन निकलेगा, बड़ा वाला टर्म। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे तो f of z इज इक्वल टू -1/2z प्लस 1/3z। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाय z रेस टू -1। ये हो जाएगा -1/12 1 माइनस z/2 रेस टू -1। आगे बढ़ेंगे, इसका इस सीरीज को एक्सपांशन दे देंगे तो f of z इज इक्वल टू -1/2z प्लस 1/3z। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/z प्लस 1/z² -1/z³ या 1 क्यूब लिख सकते हो, लिखना है तो 1 स्क्वायर भी लिखना है तो लिख सकते हो, बट 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब सेम ही होगा यहाँ पे तो इसलिए फर्क नहीं आएगा। सो ऑन प्लस सो ऑन। सर इधर माइनस व्हाट? सर इधर क्यूब तक जाना जरूरी है क्या खाली या वन नहीं, क्यूब स्क्वायर? तक, क्यूब तक करना है। 1 1 माइनस z/2 रेज टू -1 विल बिकम्स 1 प्लस z/2। 3 टर्म आना चाहिए 1 2 3। अगर बाई चांस किसी एक स्टेप में 2 तक ही लिख दिया तो चल जाता है ऐसा, लेकिन हर एक में 2 तक नहीं जाना है, पावर 3 तक लिखो। 1 प्लस z/2 प्लस z²/2² प्लस z³/2³ सो ऑन। और यहाँ पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट केस है केस 3। तो केस 3 इज mod of z is greater than 1 and mod of z is greater than 2। मतलब 2 और 1 दोनों से बड़ा है z। तो again we have to write first of all function। So f of z is equal to -1/2z plus 1/3 into z plus 1
प्लस 1/6 इंटू जेड माइनस टू, ये हमारा फंक्शन है। अब दोनों z बड़े, दोनों नंबर से z बड़ा दिखाया है, थर्ड केस z इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 2, तो f of z is equal to -1/2z as it is प्लस 1/3। पहला z और 1 में कौन बड़ा है, z, तो z आप कॉमन ले लोगे, तो z कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/z हो गया, प्लस 1/6। z और 2 में कौन बड़ा है, z इज ग्रेटर देन 2, तो आप z यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 6z, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/z। इसको ऊपर लेके एक्सपांशन देना है, सो f of z इज इक्वल टू -1/2z प्लस 1/3z। ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ऊपर लेके एक्सपांशन देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि ये सीरीज एक्सपांशन किया गया है, वैसे आप डायरेक्ट देना चाहो दे सकते हो वो स्टेप, या फिर आप दो स्टेप में करो, 1 प्लस 1/z रेज टू पावर -1 प्लस 1/6z 1 माइनस 2/z रेज टू -1, और आप फिर एक्सपांशन दोगे, f ऑफ z इज इक्वल टू -1/2z प्लस 1/3z, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/z प्लस 1 स्क्वायर बाय z स्क्वायर माइनस 1 क्यूब बाय z क्यूब प्लस सो ऑन, प्लस 1/6z पे आएंगे, दिस विल बिकम्स 1 माइनस, है तो बीच में सीधा प्लस से स्टार्ट होगा, 1 प्लस 2/z प्लस 2 स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बाय z क्यूब, सो ऑन। और यहाँ पे यह सम आपका खत्म होता है, उसके बाद 3 डायग्राम आपको निकालने हैं। तीनों केसेस का 3 डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन होता है। द फर्स्ट केस इज, so this is the first case, and the first case is mod of z is less than 1 and mod of z is less than 2। रेडियस यहाँ पे 1 का हम देखेंगे, इसमें जो भी पार्ट है उसको हम शेडेड कर देंगे इस एरिया को ऐसा। उसके बाद आपको 2 सर्कल बनाना है। वी हैव टू मेक 2 सर्कल्स, जिसमें ये छोटा सर्कल के तौर पे काम करेगा, जिसका रेडियस 1 है। उसमें आपने लिखा था सेकेंड केस, मॉड ऑफ z इज, और 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z इज लेस देन 2। और ये जो है ये बड़ा सर्कल आपका रहेगा जिसका रेडियस आपका 2 है। तो इसमें बिटवीन द सर्कल्स जो वैल्यू है उसको आप शेडेड करोगे, ये वाला एरिया आपका शेडेड होगा। शेडेड रीजन ऐसा जनरली पेंसिल से आप दिखा दो या पेन से भी बना दोगे, एक रफ स्ट्रक्चर का ज़रूरत है, कोई बहुत डिज़ाइन या एकदम सर्कुलर सर्कल होना चाहिए ऐसा कंपल्शन नहीं है, एक रफली आपको सिर्फ एक वो बताना है। लास्ट एक और सर्कल बनाओगे आप,
जिसका रेडियस आपका 2 है, इसमें आप आउटसाइड द रीजन को आप शेडेड करोगे। Why outside? This is third case mod of z is greater than 2 and mod of z is greater than 1. So ये 3 केसेस आपने सॉल्व किया है। पहले केस को बोलते हैं बिटवीन द रीजन, सॉरी, inside the region. First case is known as inside the region, और सर्कल बोल सकते हो, inside the circle. सेकेंड को हम लोग कहते हैं बिटवीन द सर्कल। थर्ड है होता है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। इसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। जो आपका वाईफाई या नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, या जो गेम्स वगैरह आप खेलते हो उसमें आपको ऐसे सर्कल दिखते होंगे जिसमें एनिमी वगैरह दिखाई डिफाइन करता है कि हाँ यहाँ पे है, या आप वाईफाई जब यूज़ करते हो तो एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस तक ही आपको नेटवर्क मिलता है। उसके जब आउटसाइड आप चले जाते हो तो आपको उसका नेटवर्क नहीं डिफाइन होता है। या कोई भी चीज़ का जब कोई भी कनेक्टिविटी है एक पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट तक डिफाइन है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है जो टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज का, वो बेसिकली उसी के लिए यूटिलाइज किया जाता है, उसी के प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह में यूटिलाइज किया जाता है। सो दिस इज नोन एज अ टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज। ये कंटिन्यूएशन वाली सीरीज है, एंडिंग नहीं होगी कि एक पर्टिकुलर रीजन में आप रहोगे। जैसे आप बिटवीन द सर्कल ले लो या इसके सर्कल ले लोगे, तो इसमें जब आप रहोगे तो आपको जो कनेक्टिविटी है या जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन टाइम के बाद वो बंद हो जाते हैं, नो वे। यू विल गेट अ कंटिन्यू नेटवर्क और कंटिन्यू कनेक्टिविटी आपको मिल रहा है। लेकिन आउटसाइड द सर्कल आप जब चले जाते हो तो आपको कंटिन्यूएशन में नेटवर्क नहीं मिलेगा, वो भी कंटिन्यूटी ही आपके साथ चलने वाला है। जैसे फिर बिटवीन द रीजन आओगे या बिटवीन द सर्कल आओगे फिर से आपको मिलेगा। तो बेसिकली दिस टॉपिक इज नोन एज अ रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का एज वेल एज इंजीनियरिंग का। नाउ दिस वाज आवर क्वेश्चन, हमने क्या वर्क किया है, you can just see that the question was expand f of z is equal to 1 by z into z plus 1 into z minus 2 with unit circle about the origin। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस का वर्क कर लिया है। पार्शियल फ्रैक्शंस का वर्क किया तो a b और c तीनों वैल्यू हमको इजीली मिल गए हैं यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी डिफाइन 3 केसेस। 3 केसेस ये पहले भी डिफाइन कर सकते थे ऊपर, बट वो हमने डिफाइन नहीं किया, वो हमने डिफाइन नहीं किया। आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन ही आप डिफाइन करो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद ही आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शंस क्यों किया गया, व्हाई वी डिड अ पार्शियल फ्रैक्शंस, बिकॉज अगर पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं करते तो आप एक्सपांशन ही नहीं कर पाते। z इक्वल टू 1 -1 एंड z इक्वल टू 2 या z 1 और 2 जो वैल्यू आपने निकाला है वो डिफाइन ही नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है तो इनको सेपरेशन होना इंपॉर्टेंट है, इनका सेपरेट करना इंपॉर्टेंट था। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी डिफाइन दिस केसेस, और उसके बाद वन बाय वन केसेस वी हैव टू डिफाइन। सबसे पहला ये सीरीज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, 1 प्लस जेड रेस टू -1 एंड 1 माइनस जेड रेस टू -1। अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं याद है तो आप ये सम नहीं सॉल्व कर पाओगे, कोई भी कीमत पे नहीं होगा सॉल्व। -1/2z जो भी टर्म्स थे वो पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद वो फंक्शंस हमने क्लियरली लिखा है। उसके बाद क्लियरली मेंशन है फर्स्ट केस जो रहता है वो नंबर में, नंबर और z के बीच में ही आपको कंपैरिजन करना है जो भी केसेस हैं। फर्स्ट केसेस में हमेशा नंबर ग्रेटर होगा उस वेरिएबल z से। सेकेंड केस में
स्मॉलेस्ट नंबर लेस होगा आपके वेरिएबल से एंड ग्रेटर नंबर ग्रेटर होगा आपके वेरिएबल से। थर्ड केस में वेरिएबल आपका ग्रेटर होगा दोनों नंबर से, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड केस। सो फर्स्ट केस में देखोगे तो द मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, मॉड ऑफ z इज लेस देन 2, मतलब नंबर्स ग्रेटर हैं। सीधा फंक्शन में आने का, पहला z और 1 देखने का, तो 1 आपका ग्रेटर है, तो 1 को आप कॉमन निकालोगे, 1 कॉमन निकालने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए वो एज इट इज है। लेकिन 2 आपका ग्रेटर है z से, तो 2 निकालोगे, लेकिन जैसे ही 2 निकालने आओगे आप ब्रैकेट देखोगे -2 है, तो आपको -2 निकालना है, जो साइन रहेगा उस साइन के साथ आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद उसको प्रॉपर एडजस्ट करो, प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के बाद उसको ऊपर ले जाना है आपको न्यूमरेटर में। सो रेस टू -1 हो गया, रेस टू माइनस होके आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, वो सीरीज का रूल अप्लाई करके। व्हेन 1 प्लस z रेस टू -1 इज देयर, यू हैव टू अप्लाई अल्टरनेट साइन। व्हेन 1 माइनस z इज देयर, वी हैव टू कंटिन्यूअसली विद पॉजिटिव साइन। सेकेंड केस आप देखोगे तो बिटवीन द पॉइंट्स है, मतलब z इज ग्रेटर देन 1 है, z इज लेस देन 2 है। तो z ग्रेटर देन 1 है तो z और 1 में से z कॉमन निकलेगा, जो भी बड़ा है वो कॉमन निकल जाता है, ये चीज़ माइंड में फिक्स रखना है आपको। सो z हमने कॉमन निकाला, z कॉमन निकालोगे तो z की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 1/z हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आपको चेक कर लेने का, कभी भी ऐसा डाउट रहे कि ये प्रॉपर है या नहीं है, तो यू शुड हैव टू डू अ मल्टीप्लिकेशन टर्म्स एंड जस्ट वेरीफाई इट, दैट्स इट। सिमिलरली 2 और z में 2 इज ग्रेटर, तो फिर से -2 बाहर निकालना है, जैसे ऊपर वाले केस में हमने निकाला है, और फिर से ऊपर लेके सीरीज एक्सपांशन करना है। थर्ड केस अपोजिट होगा फर्स्ट केस के। फर्स्ट केस में दोनों नंबर कॉमन बाहर निकले थे, थर्ड केस में दोनों में वेरिएबल कॉमन निकलेगा। तो z और 1 में यू कैन सी दैट इज z इज ग्रेटर देन 1, तो यू कैन टेक z आउटसाइड। z इन 2 में z इज ग्रेटर देन, तो अगेन वी हैव टू टेक z एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर निकाल दिया, और बाद में तीनों सर्कल डिफाइन किए। फर्स्ट केस का पार्ट था, दैट इज फर्स्ट केस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनसाइड द सर्कल। सेकंड केस है बिटवीन द सर्कल्स, और ये थर्ड केस है आउटसाइड दिस सर्कल। तो ऐसा करके ये सम सॉल्व हो जाता है। 8 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। ये एकदम सिंपल टाइप था, इसमें दो टाइप है, एक तो ये सिंपल टाइप होता है, इसके बाद एक और टाइप होता है जिसमें ओरिजिन पे नहीं दिया रहता है। इसमें अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है विथ यूनिट सर्कल अबाउट द ओरिजिन। तो अगर ये चीज़ नहीं दिया है तो उसको सॉल्व करने का भी सेम तरीका है, सेम फंडामेंटल है, बस थोड़ा सा खाली सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। So just go through with this part. If anyone having any doubts regarding this problems, so you can ask. सर केस फॉर्मेशन। केस फॉर्मेशन में क्या इशू है? सर जो केस 2 बना है बस वो एक बार समझा दीजिए। केस फॉर्मेशन is a very simple. See, case formation is just a second. My voice is repeated. Okay, so case formation is basically what, आपको जो पॉइंट्स दिए गए उस पॉइंट्स पे देखना है। आपको देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट मिलते हैं उस ब्रैकेट के बेस पे आपको जाना है, नथिंग मोर। दोनों ब्रैकेट में आपको नंबर्स पहले देख लो, 1 और 2 है, 1 और 3 है, जो भी है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था ऊपर 1 2 है, तो पहला केस सीधा होगा कि z 1 से भी छोटा, 1 से छोटा है तो बाय डिफॉल्ट 2 से छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं देखना है। सेकंड केस आपका क्या रहेगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे z को आपको बड़ा दिखाना है, और जो लार्ज नंबर है उससे आपको छोटा दिखाना है z को। थर्ड केस जो आपका है वो देखोगे तो z मस्ट बी ग्रेटर दैन 2 एंड z मस्ट बी ग्रेटर दैन 1, मतलब z बड़े नंबर से भी बड़ा है, और तो बाय डिफ़ॉल्ट वो छोटे नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे 3 केस सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगा आपको। नथिंग मोर, मतलब केसेस बनाने में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, केस तो बहुत ईज़िली आपका बना सकते हो आप, कोई बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। नाउ जस्ट
शेयरिंग फॉर द फर्स्ट अटेंडेंस शेयर कर रहा हूँ मैं। एक अटेंडेंस नहीं रखना मैं, दोनों अटेंडेंस आपको रखना है। सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म में अगर बड़ा नंबर रहेगा तो भी सेम तरीके से केस करना है क्रिएट। क्या फर्स्ट टर्म में? जैसे कि 1/3 ब्रैकेट में z+1 है, उसकी जगह अगर z+2 रहता है तो और कहीं पे भी रहेगा, कहीं पे भी रहेगा नंबर। लास्ट। आप नंबर आपको ऐसा है कि आप के लिए सीधा सिंपल है, ये आगे पीछे होगा तो उससे कुछ फर्क नहीं है आपके लिए। अगर मतलब z-2 इधर रहता, z+1 इधर रहता तो भी सेम वैसे आप जाते, जो बड़ा है वो कॉमन निकलेगा, दैट्स इट। अच्छा, हाँ ओके सर, थैंक यू मैंने सर। हाँ पोजीशन नहीं बताया, पोजीशन नहीं मैटर करता है। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नंबर मैटर करता है कि कौन बड़ा है, जो बड़ा है वो कॉमन निकल जाता है। नाउ यू जस्ट पुट फिल दिस फर्स्ट अटेंडेंस फॉर 9 to 10 का आप अटेंडेंस फिल करो। देन नाइन टू टेन का अटेंडेंस फिल करो, उसके बाद जब वो लेक्चर स्टार्ट होगा करूँगा, देन आई विल गिव दिस सेकेंड अटेंडेंस। Okay, so you just fill it. I'm just moving ahead with the next problem. Hope the screen is visible to everyone. Now proceeding with the next problem. Okay. Okay, now see the next question is expand f of z equal to z square plus z square minus 1 upon z square plus 5z plus 6.
अराउंड z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको ओरिजिन नहीं दिया गया है, ये चीज़ थोड़ा मैटर कर जाती है यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह आप टैकल करते हो। नाउ सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्क आपको करना है यहाँ पे। आप अच्छी तरह से यहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, या कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इफ यू कैन सी दैट द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल, मतलब इक्वल हो गया यहाँ पे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे में आप पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा वर्क करना होगा। तो वर्क करने के लिए यहाँ पे डिवाइड करना होगा। फर्स्ट डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। तो अगर आपको याद होगा स्कूल में आप करते थे ये पार्ट, आई एम जस्ट राइटिंग दिस सॉल्यूशन, या आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट अगर आपको जमता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है उस पार्ट का। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग द सिंपल मेथड। z स्क्वायर माइनस 1 को हम डिवाइड करना है हमको विथ z स्क्वायर प्लस 5z plus 6. So first we have to take as a 1 as it is. So we're getting z square plus 5z plus 6. So just we have to apply minus, so you will getting minus minus. So this part get cancelled and you will getting what? 5z or minus 5z and minus minus it will becomes minus 7. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पार्ट को, तो अब इसका और इसमें डिग्री में अगर देखोगे तो हो गया डिफरेंसेस। इसका डिग्री यहाँ पे अब कम हो जा रहा है आपका, इस पार्ट का, आपके डिनोमिनेटर्स, क्योंकि रूल है उसके लिए आप पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते हो कब तक, जब तक इक्वल है या उससे कम नहीं, सॉरी कम नहीं हो जाता। तो न्यूमरेटर का डिग्री सबसे पहले कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो ही आप पार्शियल फ्रैक्शन से अप्लाई कर सकते हो या पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए आप जा सकते हो। अगर न्यूमरेटर का डिग्री इक्वल है डिनोमिनेटर से या ज़्यादा है तो उसको पहले कम करो, कम करके फिर आप सॉल्यूशन ला सकते हो। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये तो बेसिक है, स्कूल में आपने सीखा ही होगा ये पार्ट। कैसे लिखते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू, very easily you can write 1 minus, so minus of this part, so as we have to take as a 5z plus 7 upon z square plus 5z plus 6। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया, जो पार्ट है मेरा 1 एज इट इज़, 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 5z अपॉन माइनस 5z, सॉरी माइनस 5z माइनस 7 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। रिमेनिंग टर्म यही आपको मिल रहा है। सो दिस इज अवर पार्ट। बेसिकली एक्चुअल बाय डिवीजन किया है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता आप डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डायरेक्ट से बेटर एक्चुअल डिवीजन मेथड जो आप स्कूल में सीखते हो वो सबसे ईजिएस्ट वे होता है कोई भी टर्म्स को डिवाइड करने के लिए। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, अब इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजीली कर सकता हूँ। अब मेरा फंक्शन ये नहीं रहेगा, अब मेरा फंक्शन पूरा ये हो गया। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर माइनस 5z माइनस 7
अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। इसका दो फैक्टर मैं इजीली बना सकता हूँ। एक फैक्टर क्या आएगा z प्लस 3 या 2, और एक फैक्टर आएगा 3 to z plus 2 and z plus 3। 3 2 ज़ा 6, तो 6 हो गया। 3z plus 2z 5z हो गया, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप सॉल्व करोगे तो a अपॉन z प्लस 2 प्लस b अपॉन z प्लस 3। सॉर्ट आउट कर दोगे इसको तो न्यूमरेटर को लिखोगे -5 इंटू जेड -7 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पार्ट कैंसिल हो जाते हैं। सो a इंटू जेड प्लस 3 प्लस b इंटू जेड प्लस 2। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस और z a फाइंड आउट करना है तो z को जीरो करने के लिए तो z इक्वल टू, जैसे मैं 2 रखता हूँ या -2 नॉट 2, -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा तो ये b जीरो होगा। -5 इंटू -2 आपको मिलेगा 10 -7 is equal to -2 plus 3 will becomes 1, so a आपको यहाँ पे मिल जाता है 3। सिमिलरली अगर z इक्वल टू मैं रख दूँ -3, if I will put z equal to -3, so -3 plus 3 will become 0, -3 plus 2 will becomes -1, and -3 into -5 will becomes 15, -7 is equal to -b, is equal to -b। therefore at the end b is equal to, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, b is equal to 15 minus 7, it will becomes 8। तो ऐसे आपको टर्म्स मिल जाते हैं यहाँ पे -8, सॉरी नॉट 8, -8, बिकॉज b माइनस था तो यू विल गेटिंग -8। अब ये जो दोनों टर्म है वो आपके फंक्शन एफ ऑफ जेड के साथ आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये टर्म्स हो गए आपके एफ ऑफ जेड। a इज इक्वल टू आपको है 3 अपॉन z प्लस 2, b आपका है -8 अपॉन z प्लस 3, और ये आपका फंक्शन है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है, क्या दिया गया है, अराउंड z इक्वल टू 1, अराउंड z इक्वल टू 1 दिया गया है। दिस मीन्स व्हाट, अराउंड z इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, z माइनस 1, अराउंड, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अराउंड z equal to 1, this means z minus 1 equal to z minus 1, sorry, z minus 1 around z equal to 1, we have to obtain, we have to obtain we have to obtain Lorentz series in power of z minus 1। अगर -1 दिया रहता है यहाँ पे तो z प्लस 1 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है।
तो इन पावर ऑफ z-1। z इक्वल टू 2 दिया जाता तो आपको लिखना रहता z-2। अगर z इक्वल टू 3 दिया जाता तो z-3। सो उस बेसिस पे आपको लिखना है प्रॉपरली। नाउ मूविंग अहेड, अब केसेस डायरेक्टली आप नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है, z इक्वल z, यहाँ पे भी z दिख रहा है, यहाँ पे z दिख रहा है, उसको सबसे पहले पावर ऑफ मतलब z में कन्वर्ट कर दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ z इक्वल टू थ्री अपॉन, लेकिन आपको एडजस्ट प्रॉपरली करना है, तो z-1। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है आपके लिए, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ z-1 और +3। अगर मैं इस ब्रैकेट को एक्सपांशन दूंगा, z-1 +3, अगर ये ब्रैकेट को एक्सपांशन दूंगा तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, z+2 ही मिल जाएगा। -8 अपॉन z-1 पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर प्लस, मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो आई हैव टू राइट 4 बिकॉज z-1 + 4 दैट इज इक्वल टू z+3 आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ हमने लिखा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ z था क्योंकि ओरिजिन पे बात कही गई थी, यहाँ पे अराउंड z इक्वल टू 1 पे बात कही गई है, तो z को z नहीं रह जाएगा, यहाँ पे z-1 हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए z-1 हो जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स। तो जहाँ पे भी z है वहाँ पे हमने क्या लिखा है, z-1। तो इसको वेरी इजीली, मतलब इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ लेट, या डायरेक्ट अगर करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट मैं हमेशा कंसिडर और सपोज करके करता हूँ। तो लेट z-1 इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ y। तो मेरा ये f ऑफ z जो है, f ऑफ z एज इट इज 3 अपॉन y+3 हो जाता है, और -8 अपॉन y+4 हो जाता है। अब मैं केसेस इजीली बना सकता हूँ। अब मेरे जो दोनों केसेस हैं वो क्या बनेंगे, पहला 3 केस, फर्स्ट केस मेरा बन जाएगा, मैं वन बाय वन सॉल्व भी करते जाऊँगा। फर्स्ट केस मेरा बनेगा mod ऑफ y इज लेस दैन 3, therefore mod ऑफ y इज लेस दैन 4। ठीक है, दोनों दो नंबर है आपके सामने, दोनों नंबर आप अच्छी तरह से देखोगे तो 3 से छोटा होगा, therefore 4 से भी छोटा हो जाएगा वो पार्ट आपके लिए। सो अब इसको रख के एक्सपांशन देना है आपको, f ऑफ z इज इक्वल टू, लास्ट में वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना, y मतलब z-1। सो 3 अपॉन y+3 -8 अपॉन y+4। देखोगे तो 3 इज ग्रेटर देन y, तो 3 को आप कॉमन निकालोगे, f ऑफ z इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 आपने कॉमन निकाला, +3 है तो +3, तो ये क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा। तो आइए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो 3 की जगह पे क्या आएगा, 1 + y/3, y/3 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, फिर से मिल जाएगा, 3 × y, 3 3 कैंसिल, फिर से y मिल जाएगा, मतलब आपने प्रॉपर किया। -8 अपॉन, यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर दैन y, 4 आप बाहर निकालोगे तो 4 की जगह पे 1 हो गया और y की जगह पे y/4। चेक कर लेने का, सर प्लस, तो +4, यस। सर आपका एफ ऑफ जेड शायद गलत है। क्या गलत है, सर वो 1 माइनस भी था ना, वो किधर गया? क्या 1 माइनस? सर आप थोड़ा स्क्रीन नीचे मतलब स्क्रॉल स्क्रॉल अप करो ना। अच्छा, सर ये देखो 1 ना। माइनस, हाँ। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लस में रख लेते हैं, +1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को तो एक्सपांशन किया था, तो माइनस ये पूरे को मैंने सॉल्व किया है ना, ये पूरा तो हाँ सॉल्व सर। करके हमको यही मिला है, तो +1 लेके साथ में ऐड करके चलते हैं, वो 1 हमारे लिए रह गया था।
So this will becomes +1, so that f of z will becomes वंस का तो यहाँ पे +1 +1, या 1 माइनस करोगे तो ये दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, इट्स अप टू यू। लेकिन माइनस ऑलरेडी आपने यहाँ पे ले लिया था ये पार्ट को, तो इसके लिए फिर से माइनस करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो +1 कर दो, तो +1 कहीं पे एक्सपांशन में नहीं काम आएगा, लेकिन फिर भी हमारा फंक्शन का हिस्सा था, सो वी हैव टू kept as it is. Now we have to take in the numerator. So f of z is equal to 3 गेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा सीरीज आएगा 1 + y/3 रेज़ टू -1 माइनस 4 1 सा 4 4 2 सा 8, तो 2 इंटू 1 + y/4 रेज़ टू -1 कैंसलेशन हो जाता है ये दोनों पार्ट। फिर एक्सपांशन में तो आपको पता है एक्सपांशन f of z इक्वल टू 1 - y/3 प्लस y² 3² -y³ 3 प्लस सो ऑन। ये फर्स्ट सीरीज हो जाएगा आपका +1 एज इट इज, प्लस -2 इंटू -1 - y/4 प्लस y²/4² -y³ प्लस सो ऑन एंड +1, या 1 प्लस से आप लिख सकते हो, माइनस लेकिन लिखना पड़ेगा, तो फिर +1 आउटसाइड। सो f ऑफ z इज इक्वल टू, लास्ट में वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना मत भूलो, क्योंकि y का कहीं पे जिक्र नहीं था, ये तो आपने सिर्फ कंसिडर किया था। तो आपका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आपको आएगा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट केस का 1 माइनस y मतलब क्या था, z -1 हमारे लिए था, z -1/3 प्लस z -1 रेज़ टू पावर 2/3² माइनस z -1 रेज़ टू पावर 3/3³ प्लस सो ऑन। ये फर्स्ट हो गया आपका -2 इंटू 1 प्लस सॉरी 1 माइनस z -1 रेज़ टू डिवाइडेड बाय 2 प्लस z -1 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर है, माइनस z -1 रेज़ टू पावर 3/4³ प्लस सो ऑन +1। और ये आपका फर्स्ट केस सॉल्व होता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, पूरा प्रोसीजर सेम है, खाली चेंजेस कहाँ पे आ जा रहा है, ये जो अराउंड z = 1 दिया है इसकी वजह से। तो वो जो भी पार्ट आपको देगा z = 1 2 3 4 जो भी, उसके जगह पे आपको वो z -1 या z -2 उस फॉर्मेट कन्वर्ट करना और फंक्शन को प्रॉपर लिखना है। बाकी सब्स्टिट्यूशन करने पे पूरा फंक्शन सेम वे से आपको मिल जाता है। नेक्स्ट केस अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, केस 2, केस 2 सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या मिलता है हमको। पहला सिंपल 3 और 4 है ना, तो सीधा ओरली याद हो जाना चाहिए आपको, mod of z is greater than 3 and mod of z is less than 4। f of z सीधा उठा के लिखने का, f of z इक्वल टू so mod f of z equal to, our f of z was what, 3 upon y plus 3
प्लस और माइनस 8 अपॉन y प्लस 4। कॉमन निकाल दो फटाफट। अब मैं ये स्टेप डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना। कौन बड़ा है? दैट इज z इज ग्रेटर विथ वो 3 और z की जगह पे y लिखो यहाँ पे। सो मॉड ऑफ y, mod of y. So f of z equal to, directly you have to take y as a common factor, so 3 by y आ जाएगा आपका common factor, and this will becomes 1 plus 3 by y, minus again you can take 4 outside because 4 is greater with y, so 8 upon 4 into 1 plus y by 4। अब डायरेक्ट लेके सीरीज एक्सपांशन दे देता हूँ यहाँ पे। f of z इक्वल टू 3 बाई y तो एज इट इज़ रहेगा। सीरीज एक्सपांशन दोगे तो प्लस है तो अल्टरनेट ही जाएगा 1 माइनस 3 बाई वाई प्लस 3 स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस 3 क्यूब बाय वाई क्यूब, सो ऑन। ये तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू सीरीज विल बिकम्स 1 माइनस वाई बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नॉट माइनस, वाई क्यूब बाय 4 क्यूब अप टू सो ऑन। लास्ट स्टेप में आपको सिर्फ वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। f of z is equal to, so f of z is equal to 3 upon z minus 1, 1 minus 3 by z minus 1 plus 3 square upon z minus 1 the whole square minus 3 cube upon z minus 1 the whole cube plus so on, minus 2 into 1 minus z minus 1 by 4 plus z minus 1 raised to power 2 times by 4 square minus z minus 1 raised to power 3 by 4 cube, so on। और ये सेकेंड केस आपका सॉल्व हो जाता है। प्लस वन लिखना फिर से मैं बुलाऊं, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन रहेगा। अगर नहीं लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, तो यू शुड राइट प्लस वन। So this is the expansion of a second case. Now moving ahead with the third case. थर्ड केस में क्या आएगा? mod of y is greater than 4, therefore mod of y is greater than 3। जब 4 से बड़ा है तो 3 से तो बाय डिफॉल्ट बड़ा हो जाएगा। So f of z is equal to 3 upon y plus 3 minus 8 upon y plus 4। दोनों में देखोगे तो y ही ग्रेटर है तो y ही कॉमन निकलेगा। सो f of z is equal to 3 by y into 1 plus 3 by y minus 8 by y, so 1 plus 4 by y। अब ऊपर लेके सिर्फ एक सीरीज एक्सपांशन करना है, प्लस वन प्लस वन। So f of z is equal to 3 by y 1 minus 3 by y plus 3 square by y square minus 3 cube by y cube plus so on, minus 8 by y
1 minus 4 by y plus 4 square by y square minus 4 cube by y cube plus so on plus 1. And last step, we have to just put y equal to z plus 1. So f of z is equal to 3 by z minus 1, sorry, not plus 1, 1 minus 3 by z minus 1 plus 3 square upon z minus 1 the whole square plus or minus 3 cube z minus 1 the whole cube plus so on. Minus 8 by y, 1 minus 4 upon z minus 1 plus 4 square upon z minus 1 the whole square minus 4 cube upon z minus 1 the whole cube plus so on and plus 1. सर वो -8 के नीचे भी z-1 ही आएगा ना? हाँ, z minus 1 आना चाहिए. So this part is again z minus 1. So this is our problem. Now we have to define the 3 circle as accordingly. So this is the first circle. जिसमें first case में क्या था? First case में mod of y is less than 3. 3 से छोटा है तो 4 से छोटा ही रहेगा. तो वो सेकंड केस, सेकंड पार्ट अगर नहीं भी लिखो तो देन वी कैन अंडरस्टैंड. बट mod of y हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. y की जगह पे हम लिखेंगे z minus 1 is less than 3. सेकंड केस में आपके लिए था, सेकंड केस में 2 सर्कल थे जिसमें कंसेप्ट था mod of, या we can say that is mod of y is greater than 3 but less than 4. तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, what should we have to write as a 3 is less than mod of z minus 1 less than 4. z minus 1 y था बट डायरेक्ट 2 स्टेप में करने की जरूरत है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन. लास्ट केस में एक सर्कल हमने बनाया या बनाते हैं इस पार्ट को. mod of z minus 1 is greater than 4. देखो लिखना है तो लिख सकते हैं अलग अलग से फिर से, mod of z minus 1 is less than 4. बट ये सीधा सादा कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ 3 से छोटी है वो बाय डिफॉल्ट 4 से छोटी होगी. यहाँ पे भी लिखा है mod of z minus 1 is greater than 4, मतलब जो 4 से बड़ा है वो बाय डिफॉल्ट 3 से छोटा ही रहेगा, जो छोटा नंबर है. यहाँ पे सिमिलर वे से आपको रेडियस आपको देना है. that radius is we can consider as a 3. यहाँ पे पहला रेडियस आप 3 दे दो और दूसरा रेडियस हमें फॉर एग्जांपल इट्स अप टू यू, कंटिन्यूटी में करो या फिर ऐसा आप करके दोगे तो इसको आप 4 लिख दो. यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस हमने अगर 4 दे दिया है. दिस ऑल द आर वैल्यू z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1. अब सिर्फ इसको क्या करना है, शेडेड कर दो एक हल्के उससे. शेडेड कर देते हैं इस पार्ट को. यहाँ पे बिटवीन द सर्कल्स पे आप कर दो, दोनों सर्कल के बीच में आप शेडेड कर दोगे ये एरिया को. यहाँ पे आउटसाइड आपको करना है. और यहाँ पे सम खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है. नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स सो प्लीज आस्क. सो अगेन आई Yes, विल sir. सर one by पहले one, one by one. Sir, at the starting, वो +7 कैसे आया सर? What? इधर सर, हाँ सर इधर ही +7 कैसे आया सर? क्योंकि हमें सॉल्यूशन में -5z -7 मिला था, तो वहाँ +7 कैसे आया? हम लोग ने बाजू में सर. किधर ये?
हाँ, वहाँ हम लोग ने -7 फाइंड किया सर, डिवीजन करके, ठीक है। तो हम लोग ने जो इक्वल टू में असाइन किया है ऊपर सर, इक्वल टू। एक मिनट, कहाँ पे बोल रहे हैं? सर बाजू में ही। ये हाँ हाँ सर, वहाँ तो +7 ये जैसा है। माइनस इधर लिख दिया है ना, तो अगर ये ब्रैकेट ऐसा रखूंगा मैं तो ये क्या रहेगा अच्छा इसमें से ओके सर। हाँ, उसका मतलब जब ऐसा हम लोग लिखते हैं वन माइनस, तो ब्रैकेट दो या नहीं दो बात एक ही हो जाती है। दोनों माइनस नहीं लिख सकते हैं, एक ही माइनस, क्योंकि वन ऐसा लिखेंगे ना, वन माइनस ऑफ दिस, तो मतलब ये पूरा टर्म माइनस हो गया आपका। तो इसके लिए ये जो टर्म था आपका -7 था, ये माइनस मैंने बाहर लिखा था और कुछ नहीं, लेकिन बाद में वही माइनस देखो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो -5z -7 हो गया ना आपका। तो वही पूछ रहा था कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। थैंक यू ठीक, सर। एनीवन नेक्स्ट, वन बाय वन। सर सर प्रीवियस वाले सम्स में जब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गए थे तभी रेज टू -1 लिखा था, तो इसमें -1 लिखना जरूरी है क्या? मैंने डायरेक्ट किया है वो स्टेप, वो स्टेप अच्छा। लिखना है तो लिख सकते हो, देखो पहले मैं दिखाया है, फर्स्ट केस में मैंने रेज टू -1 हाँ लिखा हाँ। है, लेकिन सेकेंड स्टेप से मैंने सेकेंड केस से क्या किया, डायरेक्ट एक्सपांशन दिया। तो अगर आपको वो लिख के रेज टू -1 फिर एक्सपांशन देना है तो यू कैन गो अहेड, बट जब हम लोग पेपर चेक करते हैं या ये करते हैं तो हम लोग को इतना अंडरस्टैंडिंग, अगर ये सीरीज लिखा है मतलब इसका रेज टू -1 ही ये पार्ट है, ये सीरीज हमने लिखा है तो इसका रेज टू -1 ही ये पार्ट है, ऐसा। तो अगर आपको दिखाना है तो यू कैन शो, अगर डायरेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स आपका कैंसलेशन नहीं होगा, कोई भी मतलब मार्क्स में तो कमी नहीं आएगी आपको। ठीक है। तो इसमें अराउंड z इक्वल टू -1 उसका यूज है। हम्म, हाँ, अराउंड z -1 इक्वल टू क्या है, वो जो प्रॉब्लम था वो आपका क्या था, देखो अभी कल हमने प्रॉब्लम देखा था, अगर आपको कल नहीं परसों हमने एक प्रॉब्लम देखा था इसमें कॉचीज में, उसमें एक सर्कल था जिसमें हमने देखा था z इक्वल टू ओरिजिन, ओरिजिन पे था, बराबर है, एक ओरिजिन पे ही हम लोग ने पॉइंट फाइंड आउट किया था, ओरिजिन पे रहता था, मतलब उसका जो सेंटर था वो ओरिजिन था। यहाँ पे जो सर्कल है या प्रीवियसली जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसमें जो सेंटर है हमारे लिए, हाँ इसमें जो सेंटर है ये 0,0 है, ये 0,0 है, ये 0,0 सेंटर है, बट यहाँ पे जो सेंटर है वो 0,0 आपका नहीं है, ये जो सेंटर यहाँ पे आपको दिया गया है ये 0,0 नहीं, ये सेंटर, तो ये z इक्वल टू 1 या z इक्वल टू 2 दिया जा रहा है, इसका मतलब जो आप रीजन फाइंड आउट कर रहे हो वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कोई पॉइंट पे है। तो जब कोई पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो पावर रहता है, जो प्रीवियसली ओरिजिन पे अगर है तो पावर क्या रहेगा, z का z ही रहने वाला है, लेकिन जब कोई पॉइंट पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पावर जो है, जो भी वैल्यू दिया है, z इक्वल टू 2 दिया है, z इक्वल टू -3 दिया है, 4 दिया है, जो भी दिया है, वो पावर कन्वर्ट हो जाएगा z माइनस ऑफ समथिंग, ऐसा। तो इसका एक्चुअली यूज जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है वो प्रॉब्लम्स में आपको देखो डिफाइन दिया गया है, उसमें क्या था, प्रॉब्लम्स आपका डायरेक्टली z से था, z से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वो z माइनस, अब ये कैसा है, ये तो हम लोग एक मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसी को अगर मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में हम लोग जब रख के मतलब सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे इक्वेशन आपका मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ऐसा है। तो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस कैसा होता है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, मैं बेसिकली कैसा होता है जब डिफेंस या रडार सिस्टम वगैरह होता है, वहाँ पे कैसा होता है कि आप फिक्स करते हो एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर दिया जाता है उस पार्ट को, या कोई भी आपका वाईफाई सिस्टम वगैरह जो भी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका ये हाउस है, सर्कुलर हाउस है, उसमें ओरिजिन पे लाके आप सेट किए हो, नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जाके सेट करते हो उसको, जिससे आपके पूरे घर में या पूरे एरिया में इक्वली नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो। तो बेसिकली जो z इक्वल टू 1 या z इक्वल टू 2 वगैरह डिफाइन होता है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, मतलब वो रीजन ऐसा है कि वहाँ पे उस पॉइंट पे अगर हम वैल्यू रखेंगे ना तो ही रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस प्रॉपर होगा। ओके, एनीवन मोर क्वेश्चन? सर स्टार्टिंग ऑफ द सम में वो +1 -fz +7 वो कैसे था? किसमें बोल रहे हो? एकदम स्टार्टिंग में। हाँ रहा हूँ, एक मिनट।
हाँ बोलो, यही वाला। हाँ, ये डिवीजन से राइट में हो, लास्ट FZ से बाजू वाला। ये हाँ, इससे बाजू में से है, हाँ वो ये ये +1। ये हाँ वो लिखने में प्लस। ये एक्चुअल डिवीजन मेथड्स नहीं पता आपको? एक्चुअल डिवीजन मेथड्स कैसे लिखते हैं? रहता तो आप याद स्कूल नहीं में है। पढ़ते रहे होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है? अच्छा, हाँ हाँ कैसे लिखते थे? हाँ हाँ। याद होना चाहिए आपको थोड़ा अच्छा, सा। हाँ ये ये तो मैंने पूरे फंक्शंस याद को आ हम गया। लोग ऐसा लिखते थे ना। हमने डिवाइड किसको किया है? जेड स्क्वायर माइनस वन को। कैन एनीवन टेल मी? जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा? डिवाइड किया है तो जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? दिस इज क्वेश्चन, दिस इज डिविडेंड रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। यस। तो उसी उसी फॉर्मूले से डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे तो आपको यही टर्म मिलेगा। तो वही चीज़ लिखा है ऐसा। इसलिए मैंने कहा कि आप एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज़ करो। क्या डायरेक्ट डिवाइड करने जाओगे गलती करके बैठ जाओगे, बट एक्चुअल डिवीजन मेथड जैसा स्कूल में सीखते थे उस तरह करोगे तो कभी कभी भी गलती नहीं करोगे। क्योंकि स्कूल में ये बेसिक चीज़ आपको पढ़ाई जाती थी, नंबर से एक्चुअली कराए जाते थे। बट यहाँ पे भी ऐसे हम लोग को प्रॉब्लम्स आएंगे। हमने ये क्यों किया है उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। क्योंकि जब भी न्यूमरेटर का पावर डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, न्यूमरेटर का डिग्री इज इक्वल टू या ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तो आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आपको बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू अप्लाई द एक्चुअल डिवीजन मेथड्स, और उससे आप अपने न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम करोगे। जैसे ही कम हो जाएगा आप तुरंत पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई कर दोगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अगर ये चीज़ आपको चाहिए तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं करो, z माइनस वन डायरेक्टली वो रख के चलोगे ऐसा ही। तो यहाँ पे जो पहला केस बनेगा वो बनेगा मॉड ऑफ z माइनस वन लेस दैन 3, मॉड ऑफ z माइनस वन लेस दैन 4। बट क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, अरे z माइनस वन तो केसेस तो z लेस दैन वन बनना चाहिए, z लेस दैन 3। या बहुत बार हम लोग क्या कर देते हैं गलती, एक्सपांशन करके फिर से वही ले आते हैं, और जबकि हमको क्लियरली एग्जाम क्वेश्चन में दिया है अराउंड z इक्वल टू वन, तो z माइनस वन ही दिखना चाहिए। इसलिए z माइनस वन को मैंने y से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इनकेस अगर फाइनल स्टेप में आप y रखना भी भूल जाते हो, रखना भूल गए फॉर एग्जांपल आप, तो भी ऐसा है कि आपके लिए कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, हम इसको फुल मार्क्स दे देंगे। बट बेटर कैसा है कि आप वापस वैल्यू को री सब्स्टिट्यूट कर दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट इनकेस अगर आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है ये स्टेप में कि कंसिडर कर लिया है कि z माइनस वन इज इक्वल टू वाई, तो अब जहाँ पे भी z माइनस वन है उसको अगर आप y लिख दिए हो तो उससे कुछ नहीं, क्योंकि एक जगह आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे ये स्टेप तक भी अगर आप करके चले जाते हो यहाँ तक भी, तो भी ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स पे इफेक्ट होगा, कुछ नहीं। बट बेटर होता है, क्या बोलते हैं, एक परफेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए वैल्यू हम लोग हमेशा रीसब्स्टिट्यूट करके रख देते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अराइज ना हो, इस वजह से। नाउ एनीवन मोर डाउट रिगार्डिंग दिस? ये सर्कल जो हमने बनाया है लास्ट में, ये कंपल्शन नहीं है, बट अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको अगर बोला जाता है कि, क्या बोला जाता है कि इंडिकेट द रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस और इंडिकेटिंग द ROC, R.O.C भी लिखता है कभी कभी, तो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस या ROC अगर आप को बोला गया है क्वेश्चन में तो आपको ये बनाना कंपल्शन है, क्योंकि इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर ये नहीं बनाओगे तो 1 मार्क्स आपके लॉस हो जाएंगे। तो अगर ROC आपको बोलता है तो बना दो, नहीं बोला है तो भी बना दो, क्योंकि कोई बहुत आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, बट अपने सेफर साइड के लिए कर देने का कि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसा है। इसलिए यू शुड रिमेंबर, अगर टेलर सीरीज आपको बोला है तो पहला जो केस हमने सॉल्व किया है वो टेलर्स होता है। अगर आपको टेलर्स लॉरेंट सीरीज या लॉरेंट सीरीज बोला है मतलब तीनों केस आपको सॉल्व करना है, टेलर्स खाली बोला है तो आपको सिर्फ फर्स्ट केस सॉल्व करना है। बट ऐसा एग्जाम में आता नहीं है, आपको एग्जाम में क्लियरली आता है
ऑब्टेन टेलर्स एंड लॉरेंट एक्सपांशन। हाँ, बाई चांस कभी कोई पैटर्न चेंज हो गया, 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया है एग्जाम में, तो शायद आपको सिर्फ और सिर्फ बोले टेलर्स सीरीज पूछ ले। बट आज तक तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि 8 मार्क्स से नीचे ये न्यूमेरिकल्स कभी नहीं पूछा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक ही न्यूमेरिकल्स आपको यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा गया है और वो भी 8 मार्क्स के लिए। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि करना क्या है। बाकी प्रॉब्लम्स अगर चेंज होते हैं तो उससे कभी ऐसा डरने का, टेंशन लेने वाली बातें नहीं होती हैं। बहुत सिंपली वे से सॉल्व हो जाता है सभी चीज़ें। तो दिस इज, जैसे एक क्वेश्चन और है, इस यही क्वेश्चन था, उसमें आपको ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है, 3 है, ये ट्राई कर लेना आप लोग। सेम क्वेश्चन, एक्सपांड z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अराउंड z इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन में z इक्वल टू 0 बोला है और यही क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है किधर गया, अराउंड z इक्वल टू 1 बोला है। क्वेश्चन सेम है, यहाँ तक सेम प्रोसीजर जाओगे, पूरी तरह से सेम प्रोसीजर, यहाँ तक आके सेम आ जाओगे, एफ ऑफ z इक्वल टू, फिर अराउंड z बोला है तो ये वर्क नहीं होगा, z माइनस 1 डायरेक्टली z इक्वल टू आप क्या करोगे, 0 है तो z इक्वल टू 0 है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, z माइनस 1 z माइनस 1 डायरेक्टली यहाँ से पहला केस क्या बनेगा, 2 और 3 का यहाँ पे रहेगा। पहला केस में आएगा मॉड ऑफ z लेस देन 2, मॉड ऑफ z लेस देन 3, ये पहला केस बन जाएगा। दूसरा केस क्या आएगा, 2 इज लेस देन मॉड ऑफ z इज लेस देन 3। थर्ड केस क्या आएगा, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। तो ऐसे केसेस बन जाएंगे। यहाँ पे 3 और 4 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि z इक्वल टू z माइनस 1 लिखना है, मतलब z की जगह पे आपको z माइनस 1 लिखना है। तो ये ऐसा आपको लिखना है कि इसमें वो दिक्कत ना हो, ये प्रॉपर रहे, क्योंकि मैथ्स हमेशा क्या कहता है, आप इसको भी कैसे भी लिख सकते हो बट प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो हमारा z प्लस 2 है तो z प्लस 2 ही रहना चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो z माइनस 1 प्लस 3 लिखा था, तो माइनस 1 और प्लस 3 करोगे तो 2 आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा 3 और 4 आ गया। अब वहाँ पे z अराउंड z इक्वल टू 0 था, तो यही हमारे लिए मेन पॉइंट था, मतलब z वेरिएबल था। बट यहाँ पे क्या होएगा, z माइनस 1 कंसिडर हो जाएगा, तो z माइनस 1 है तो 3 और 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व किया। तो सेम क्वेश्चन है, खाली अराउंड z इक्वल टू 0 है, तो यही क्वेश्चन में अगर अराउंड z इक्वल टू 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, तो आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो आना चाहिए आपको करने के लिए। बहुत सारे पेपर में, एग्जाम में हमेशा मैक्सिमम टाइम केसेस दिए ही रहते हैं, केसेस आपको दिए ही जाते हैं, सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शंस और ये सब करना रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं दिया जाता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना सब लोग। नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को रहेगा हमारा, तभी मैं पूछूंगा, अगर नहीं आया तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। 2z f of z इक्वल टू 2z माइनस 3 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 3 इन पावर्स ऑफ, पूरा वो स्टार्टिंग में वही लिखा है, ऑब्टेन टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, वो नहीं लिखा है मैंने, डायरेक्टली क्वेश्चन फंक्शन लिखा है, इन पावर्स ऑफ z माइनस 4 indicating the region of convergence, or indicating the region of convergence। सो लास्ट में वो बनाना है आपको 2z माइनस 3, यहाँ पे डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर डिग्री इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर्स डिग्री, तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस, इसके 2 फैक्टर बना दो, माइनस z, तो माइनस z ये डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो आप, z माइनस 1 और z माइनस 3 हो जाएगा इसका।
और फिर a बाय z माइनस वन प्लस बी अपॉन z माइनस थ्री रख के सॉल्व करो प्रॉपरली। खाली जहाँ पे z आ जाएगा वहाँ पे z माइनस फोर लिखोगे, डिनोमिनेटर को प्रॉपरली एडजस्ट करके। और सिमिलर जैसा सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसी तरह ट्राई करो। आता है तो ठीक, नहीं अगर आता है इन केस तो डेफिनेटली सैटरडे को हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसका कोई आंसर नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं आंसर कुछ बताऊं आपको कि इसका फाइनल आंसर ये आएगा। वो मैंने जब देखूंगा आपका रिजल्ट तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपने प्रॉपर सीरीज एक्सपांशन प्रॉपर किया है या नहीं किया है। तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या फिर मैं अटेंडेंस की तरफ जाता हूँ। फर्स्ट अटेंडेंस हो गया है आपका, सेकंड अटेंडेंस पे जाऊंगा अभी। दोनों का सेपरेट अटेंडेंस है। Just fill this second attendance.